Good morning, my dear students. Welcome back after the Ganesh Chaturthi. So, we are now starting our continuous lecture. So, today we are going to take few topics of paper 3, that is PS EVS 3, Unit 4, Biomedical Waste and Electronic Waste Management. So we have already covered the electronic waste management. Now we are going to deal with the topic that is biomedical waste. So what all things you have to study under the biomedical waste are the definition, the sources of generation, from where does this biomedical waste generated, categories, so how we can sort out these sources waste into certain categories. Next is the color coding system by which it is transported or stored in a particular boxes, or how it is stored for segregation, transportation, transport specification. Next is the treatment method. What are the different type of treatment method? It may include incineration, it may include microwaves, plasma pyrolysis, hydroclave, etc. Treatment and disposal of plastic waste also we have to take all these things in consideration according to the syllabus. Treatment and disposal of the metal sharps, biomedical waste management and handling rules 1998. So not only we have to discuss regarding the what is biomedical waste, from where they are generated, how to transport it, how to store it, and how to dispose of. So the topic biomedical waste, right from the definition we'll go through it. So definition says that बायोमेडिकल वेस्ट इज एनी काइंड ऑफ वेस्ट, एक ऐसा वेस्ट है जो कि इन्फेक्शियस है, या फिर वेस्ट विच कंटेनिंग द इन्फेक्शियस मटेरियल्स. इट मे also include waste associated with generation of biomedical waste. मतलब बायोमेडिकल वेस्ट में से जितने भी जनरेटेड प्रोडक्ट्स या वेस्ट हैं वो सब बायोमेडिकल वेस्ट में आता है. So when we are asked to define the biomedical waste, so you must give a proper definition regarding the biomedical waste. So what is a biomedical waste? The biomedical waste means any waste which is generated during the diagnosis, treatment, immunization of the human being, सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं बट ऑल्सो एनिमल्स, और इन रिसर्च एक्टिविटीज pertaining thereto, or in the production of testing of biological and including categories mentioned in the schedule 1 of the biomedical waste rule 2016. So biomedical waste के schedule 1 में जितना भी बायोलॉजिकल टेस्टिंग से वेस्ट जनरेट किया जाता है, या फिर ट्रीटमेंट के दौरान वेस्ट जनरेट किया जाता है, या फिर डायग्नोसिस या फिर इम्यूनाइजेशन, नॉट ओनली रिगार्डिंग द ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो द एनिमल्स और सर्टेन रिसर्च एक्टिविटी में जो वेस्ट जनरेट होता है, दीज वेस्ट आर सेड टू बी द बायोमेडिकल वेस्ट. Now, who generates this biomedical waste? BMW refers to the biomedical waste. अब ये जो biomedical waste है वो कहाँ से generate होता है? तो what are the sources of the biomedical waste? तो एक important category of waste है जो कि rapidly increase हो रहा है volume में, और वो है बायोमेडिकल वेस्ट. सो इसलिए इन्हें प्रॉपरली ट्रीट और डिस्पोज दोनों करना होगा. वाई? इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिस्क टू द पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ को कोई रिस्क हो नहीं, इसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपरली ट्रीट और डिस्पोज करना पड़ेगा. सो व्हाट आर द पब्लिक हेल्थ इफेक्ट्स? नॉर्मली इरिटेशन ऑफ आईज हो सकता है,
अस्थमा हो सकता है, एड्स हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, टीबी बोलते हैं हम, एंड स्किन डिसीजेस, और बहुत ऐसे डिसीज है दे मे बी कॉज ड्यू टू दिस बायोमेडिकल वेस्ट. सो फ्रॉम वेयर डू दिस biomedical waste are generated? So there are different sources from where this waste are generated. One of them is the hospital. पहला कौन सा है? हॉस्पिटल. नेक्स्ट इज द नर्सिंग होम. नेक्स्ट इज द क्लिनिक, डिस्पेंसरीज, वेटनरी इंस्टीट्यूट्स, एनिमल हस्बैंड, एनिमल हाउसेस भी हो सकते हैं. वेटनरीज म्हणजे ऐसी जगह जहाँ को एनिमल को ट्रीट किया जाता है. पैथोलॉजिकल लैब्स हो गए, उसमें ब्लड बैंक्स हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, या फिर हॉस्पिटल हो गए, क्लिनिक हो गए, रिसर्च या एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, आपका लैब हो गया, हेल्थ कैंप्स हो गया, मेडिकल एंड सर्जिकल कैंप्स हो गया, वैक्सीनेशन कैंप हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, फर्स्ट एड रूम्स ऑफ द स्कूल हो गया, या फॉरेंसिक लैब हुआ. तो ये ऐसे सोर्सेस है जहाँ से ये बायोमेडिकल वेस्ट नॉर्मली जनरेट होता है. सो दीज आर वेरी इन्फेक्शियस एंड इट इज़ डेंजरस टू द पब्लिक हेल्थ. Therefore, this waste should be properly treated and then they are generated. Sorry, dispose of. Now coming up to the symbol. So, biomedical waste can be represented by this symbol. So, you can see the symbol. This is the symbol by which they are represented. Now coming up to the characterization, biomedical waste normally इट इज़ कैटेगराइज इंटू तीन में कैटेगराइज किया गया है. इसमें काई कंटेंट, सम ऑफ देम पार्ट इज नॉन इन्फेक्शियस, few parts is infectious and few part is hazardous. So a particular biomedical waste is consisting of 70 to 85% non-infectious part. मतलब major portion इसमें जो non-infectious होता है, 10 to 50% जो 15% तो infectious होता है. It may include the sharp, it may include certain other materials, certain lab waste, maybe tuberculosis or a certain spit, many waste which is maybe infectious to the public health. And third category, that is it is consisting of 5 to 10% of the hazardous waste. ये जो 75 to 80% ऑफ नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है वो नॉर्मली नॉन हैज़ार्डियस वेस्ट जो है उसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड दी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दे आर सेपरेटेड at the source as well as the non-biodegradable waste, and certain waste which are infectious or which are containing the infection or which may be harm to the public health. They may include dressing, swabs, laboratory waste, instruments used in the patient care. Patient को care करते समय जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, sometimes they may be infectious. नेक्स्ट कमिंग अप टू दी पोटेंशियली टॉक्सिक वेस्ट, कुछ कुछ जो होते हैं वो हैज़ार्डियस होते हैं. वी हैव सीन दैट 5 to 10% जो होते हैं दे आर हैज़ार्डियस होते. तो हैज़ार्डियस में इंक्लूड दी रेडियो एक्टिव वेस्ट, एक्सरेज हो जाते हैं, एक्सरेज रिलेटेड जो होते हैं वेस्ट, दैट इज द पोटेंशियल टॉक्सिक कंटेन करते हैं. सर्टेन केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट आर प्रेजेंट. नाउ कमिंग अप टू द रूट ऑफ ट्रांसमिशन. अब ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो पब्लिक हेल्थ तक कैसे आता है, तो व्हाट इज़ द रूट ऑफ ट्रांसमिशन. तो नॉर्मली इनहेलेशन थ्रू डस्ट पार्टिकल्स जो है दे मे कंटेन जर्म्स एंड व्हेन यू इनहेल इट इट मे अफेक्ट योर बॉडी ऑर्गन और सर्टेन ट्रैक्ट, कैविटी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है और बाकी के पार्ट्स में ट्रांसमिट हो सकते हैं. या फिर इट व्हेन इट कम्स इन इंटैक्ट और नॉन इंटैक्ट स्किन के इंटैक्ट में आते हैं, टच में आते हैं, या फिर म्यूकस या मेम्ब्रेन के इंटैक्ट में होते हैं, तब ये may cause certain health effects. And also by means of by ingestion, a contaminated washed hands, हम unwashed hands अगर हमने बिना वॉश किए वो अगर खाया पिया या पानी में वाटर में contain certain type of things, when these things are ingested, तो we get
infected by means of this type of waste. These are the pictures through which you can see how these waste get in transmission or get in route to the human public health. So you can find out when they are disposed of in the open, they may come in contact with the few swamp childrens which are living in the swampy areas, so it may be hazardous. You can find out the pictures of how the biomedical waste is altogether mixed with the other wastes. This is again how they are open dumped. So the government of India first enacted an Environment Protection Act in 1986. आप लोगों को पता होगा Environment Protection Act 1986 में पहले लागू हुआ था और उसके अंडर में इन्होंने 1998 में हैंडलिंग ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट पहले इनेक्ट किया. तो अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट जुलाई 2098 में अप्लाई किया गया था. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल it is the duty of the occupiers of the hospital, nursing home, clinic, dispensary, veterinary institute, animal houses, blood banks, pathology laboratories to take all the steps to ensure that the biomedical waste is handled without एडवर्स इफेक्ट्स टू द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. उन्होंने बोला था जो भी सोर्सेस बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करते हैं ये सारे सोर्सेस इतना इंश्योर करें कि ये जो वेस्ट होगा ensures that biomedical waste is handled without any adverse effect. कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना होते हुए इसे अच्छी तरह हैंडल करना पड़ेगा. तो इसे हैंडल कैसे करना है? तो एज पर द नोटिफिकेशन रूल्स बायोमेडिकल वेस्ट इज नॉट टू बी मिक्स विद अदर वेस्ट. मतलब कुछ बायोडिग्रेडेबल है कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो बायोमेडिकल वेस्ट बाकी के म्यूनिसिपल वेस्ट में मिक्स नहीं करना चाहिए. दूसरा, बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी सेग्रेटेड इन ए स्पेसिफाइड कंटेनर. बायोमेडिकल वेस्ट सारे प्रकार के वेस्ट एक ही कंटेनर में डाल करके उसे एक स्पेसिफाइड कंटेनर में विद ए पर्टिकुलर कलर्स bag they are separated. They must be separated at the source but with a particular color containers. So BMW should be segregated in a specified containers or bags at a site of generation. जहाँ पे वो generate होता है वहीं पे एक particular bag में या container में उसे separate करना पड़ेगा. Each container has to be specifically labeled. हर एक container कलर होना चाहिए उसको लेबल करना पड़ेगा. एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच वेस्ट हैज़ टू बी डन इन स्पेसिफाइड व्हीकल ओनली. मतलब कोई भी व्हीकल में उसको अच्छी तरह हमने कलर कोडिंग बैग्स में हमने वेस्ट पहले इकट्ठा किया. इकट्ठा करने के बाद उसको लेबल किया और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्ट नहीं करना है. ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उन्हें एक स्पेसिफाइड व्हीकल ही थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है. An untreated biomedical waste is not to be stored beyond a period of 48 days. 48 hours. तो 48 hours म्हणजे 2 days, 2 दिन तक ही हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं. उसके बियॉन्ड हम उसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं. So what are the objectives of hazardous waste management, hospital waste management? So the objective of hospital waste management is to decontaminate या disinfect करना है the infectious component of the waste. जो waste में infectious component है उसको disinfect करना है at the site of generation. जहाँ पे वो generate होता है वहीं पे उसे हमें क्या करना है? disinfectant करना. So biomedical waste and under the rule अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1998 के अनुसार मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ द बायोमेडिकल्स उसमें है और कुछ शेड्यूल है. तो शेड्यूल के अनुसार ही
हमें लेबल या फिर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज या फिर कंटेनर, ये सारे हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है। तो फर्स्ट इज द कैटेगरी ऑफ वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। जो वेस्ट है हमें कैटेगरी अनुसार उसे अलग अलग सोर्स में, अलग अलग बैग में हमें उसे शॉर्ट आउट या सेग्रीगेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कलर कोडिंग। तो हर एक वेस्ट का एक कलर कोडिंग होता है। एंड टाइप ऑफ कंटेनर फॉर द डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेस्ट है। इन्फेक्शियस भी है, उसमें हैजार्डियस भी है, टॉक्सिक भी है। तो ये सारे वेस्ट को सेग्रीगेट करने के बाद एक कलर कोडिंग के बैग्स में ही उसे कंटेनर में डिस्पोजल के लिए स्टोर करना पड़ता है। नेक्स्ट, लेबल दी बायोमेडिकल वेस्ट। अगर हमने स्टोर करके हो गया कलर कोडिंग बैग्स में, उसके बाद उसको लेबल करना पड़ेगा और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड व्हीकल को हमें व्हीकल के थ्रू डिस्पोजल साइट तक उसको पहुंचा दिया जाता है। तो स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, कुछ स्टैंडर्ड्स होती हैं ट्रीटमेंट के एंड डिस्पोजल के, वो सब हमें उस पर स्टैंडर्ड्स में बैठना चाहिए। एंड द शेड्यूल फॉर द वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज लाइक इंसिनरेशन, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव सिस्टम, ये सारे शेड्यूल्स, मतलब ऑटोक्लेव आपके पास इंसिनेटर है तो उसकी पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, तो उस स्टैंडर्डाइजेशन में वो लिमिट में बैठना चाहिए। So till here we have seen the definition of the biomedical waste. So what is the biomedical waste? Next, what are the different sources from which this waste has been generated? How they are categorized, कैसे categorize किए जाते हैं? Environmental Protection Agency के अनुसार management and handling rules कौन कौन से हैं? So next we are going to deal with the categories. Thank you for listening.